گوئنگ بیک ان مائی لائف 5-6 سال پہلے میں بھی ایک ٹریڈیشنل گائنیکالوجسٹ تھی, اس لیے میری فرٹرنیٹی کو آپ کچھ نہ کہیں. میں بھی یہی کر رہی تھی کہ آفس میں کوئی آیا, چوائس ہی نہیں ہے. ہم منٹنگ منی, ہم ہسٹریکٹمیز کرتے ہیں, سرجریز کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. دیر سو مچ منی انوالوڈ ان اٹ کہ ہم اس لائف اسٹائل میں کھو جاتے ہیں. آپ 10-15 منٹ پیشنٹ کو دیتے ہیں اور پھر اگلا پیشنٹ نیکسٹ, پھر نیکسٹ, تو آپ اس میں بالکل بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈفرینس کریٹ کیا ایک عورت کی لائف میں. پھر میری امی فوت ہو گئیں تو آئی ری وزٹڈ مائی لائف اینڈ میں نے کہا کہ یہ ہم کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں کر رہے لائف میں. انسانی بنیادوں پہ بھی ایسوسیشن ضروری ہے, بیکاز دیر از سو مچ ایموشنل ویل بینگ انوالوڈ, سیکشول ویل بینگ انوالوڈ. عورت کی ہیڈ ٹو ٹو لائف افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے گیان دیں کہ وٹ شی ایکچولی نیڈس ٹو میک ہر لائف بیٹر. تو وہاں پہ پھر میں نے جو ہے ہارمون تھراپی کی, واپس جا کے اسپیشلائزیشن حاصل کی. اینڈ بلیو می نادیہ, اتنا فرق ہوتا ہے عورت کی ہیلتھ میں. آپ کو اتنی دعائیں ملتی ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھی آخری جو اگلی زندگی اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. تو اب جب میں یہاں پہ میں نے یو ایس اے میں, یو کے, جرمنی, آسٹریلیا, ایوری ویئر یو نیم ایوری کنٹری, وہاں پہ یہ پریکٹس ہو رہا ہے اور بڑے دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. بہت ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. ایف ڈی اے نے اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھئی یہ ساری ڈیزیزز کو جو ہے کم کرتا ہے. آنے والے بڑھاپے کو جو بیماریاں اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہیلپ فل ہے جو ہارمون تھراپی ہے. تو عورتوں کو آفٹر ڈسکسنگ ود دا ڈاکٹر ضرور لینی چاہیے. بات کس کی کر رہے ہیں کہ ایک بڑا نیچرل سا ایک فیز ہر عورت کی زندگی میں آتا ہے آفٹر 40, جہاں جس کو ہم کہتے ہیں جی پری مینوپاز, پیری مینوپاز, کہ جو آپ کے ہارمونز ہیں جس سے آپ نارمل فنکشن کرتے ہیں, جس سے آپ یو فیل لائک اے وومن, وہ آپ کے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ڈکلائن کی طرف جاتے جاتے اتنے مائلڈ تو نہیں میں کہوں گی, میڈیم ٹو سیویئر ہی سمٹمز ہوتے ہیں اس کے, جس میں ہم صرف بات کرتے ہیں ہاٹ فلشز کی. اس کے علاوہ اتنا کچھ ڈپریشن, آپ کی لکس کا چینج ہو جانا, آپ کے اندر فٹیک اور بہت کچھ, اور اس کو مینیج, اور یہ سالوں چلتا ہے. یہ بھی نہیں کہ کچھ مہینوں کی کنڈیشن ہے, سالوں چلے گا. اب آپ اس تکلیف کے ساتھ رہیں یا اس کو آپ مینیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری بات ڈاکٹر تو آپ کو کہے گا نا یہ قدرتی عمل ہے, آپ صرف اربز لے لو, سپلیمنٹس لے لو, سیڈ سائیکل کر لو, پریمروز لے لیں, یہ ساری چیزیں سپلیمنٹ ہوتی ہیں, یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. جو جسم کے اندر آپ کا ختم ہوا ہے, ہارمونس ختم ہوئے ہیں. اب اگر آپ کا کڈنی فیل ہو رہا ہے تو آپ نے کڈنی ریپلیس کرنی ہے نا. اگر آپ کا تھائرائڈ ختم ہو رہا ہے, تھائرائڈ ریپلیس کرنا ہے. اگر آپ کی اووریز جو ہیں انہوں نے وہ بنانا چھوڑ دیا, اب قدرتی عمل ہے کہ وہ بنانا چھوڑ دیں گی 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد, جب آپ کی ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جائے گی, آپ کو مینوپاز ہو گیا, ہارمون ختم ہو گئے. یہ قدرتی عمل جو ہے ساتھ بڑھاپا لے کر آتا ہے. مینوپاز بائی ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں میٹافلمیجنگ, میٹابولک ڈس آرڈر ہوگا. آپ کا بلڈ پریشر جو پہلے کنٹرول تھا اب کنٹرول نہیں رہے گا. ڈائبٹیز ہو سکتی ہے آپ کو, ہڈیوں کی کھوکھلاپن, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس ہو جائے گا. بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کو میموری لاس ہوگا, یادداشت آپ کی کمزور ہو جائے گی, الزائمر ڈیزیز ہو جائے گا, آپ کا ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہو جائے گا, فالج کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو 60 سال میں جا کے آنی ہیں. اور ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ ہے ڈیوورسز. جی, اور ساتھ میں جو میاں کے دوسری طرف دھیان چلے جاتے ہیں, یہ اس میں یہ ایک پیریڈ بڑا کامن 40 سے لے کے آن سیڈلی. جی, یہ بھی وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کی ریلیشن شپس خراب ہوتی ہیں. مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ ہم جب ایجنگ کو کہتے ہیں, پرانے وقتوں کی یہ باتیں ہیں کہ ایجنگ ہے بھائی, ایج کے ساتھ ساتھ تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. ایجنگ نارمل ہے, ایجنگ کے ساتھ آنے والی بیماریاں نارمل. یعنی آپ ایسا ہے نا, آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ایج کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ساری بیماریاں چلتی آ رہی ہیں. 50 سال کی عورت کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی, رکوع سجدہ نہیں کر سکتی, مجھے چیئر دے دو. از دیٹ نارمل؟ آپ سوچتے ہیں کہ 60 سال کی عورت جو ہے بھاگ دوڑ نہیں سک رہی, ماؤنٹین پہ نہیں جا سکتی, اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی, گرینڈ کڈس کو انجوائے نہیں کر سکتی. بات یہ کہ قدرتی اگر آپ کے ہارمونز اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں تو اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کو صرف یوز ٹو نہیں ہونا, اور اس سے آپ کی ہڈیاں, مسل, ہر فنکشن افیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. 40 سال سے لے کے 50 سال تک آپ کو سمٹمس آتے ہیں. جب آپ کی جسم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, سگنل آتا ہے برین سے آپ کی اووریز کے پاس, وہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ مجھے انفلیمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے, مجھے ہارمونس چاہیے, میرے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں. پیری مینوپاز کہتے ہیں اس پیریڈ کو, کچھ میں 5 سال, کچھ میں 10 سال, اکارڈنگ ٹو دا لائف اسٹائل عورت کا. اور اس میں کتنے سمٹمس, کچھ کو کم علامات, کچھ کو زیادہ. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ کو ڈسمس کر دیتا ہے یہ نارمل ہے. نہیں, اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے. سپلیمنٹس, لائف, آپ نے جتنی ایکسرسائز کرنی ہے, رات کو سونا ہے اچھا, یہ سب بیسک باتیں ہیں جو آپ ان کو بتائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو صحیح انفارمیشن دیں گے نیچرل ہارمونس کی, سنتھیٹک ہارمونس نہیں جو کہ بائی ماؤتھ لیتے ہیں. آپ کو کریم کی صورت میں سنتھیٹک ہارمونس جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیے جا سکتے.
क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। अब जब उसका पूरी साल के लिए माहवारी खत्म हो जाएगी तो यही अलामात उसकी बीमारियों में बदल जाएंगी। जी बेशक। ये प्रोसेस है जो 40 में स्टार्ट हुआ है, 60 साल की औरत को जाके बीमारियों की सूरत में आ घेरेगा, और तब तक आप एक नानी दादी जो बन जाते हैं, फिर आप किसी और के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब और आप किसी और के ऊपर बोझ बन और ये जो 28 गोलियां दी जाती हैं आपको एज अ रिप्लेसमेंट के जी, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन काफी है और सारा कुछ है, आप पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसकी, ये जो ज़्यादा मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में हम यही खा रहे हैं जी। ये क्या डेंजरस है? पाकिस्तान में थी नहीं ना, पाकिस्तान नहीं, लेकिन में इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये synthetic मेडिसिन hormones हैं। ये सिंथेटिक है क्या ये, और ये भी कहते हैं कि ज्यादा अरसा इस्तेमाल करो तो कैंसरस है। देखें, अगर सिंथेटिक हार्मोन्स आपके लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, इसके जो मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगी, ऑडियंस के लिए बस ये डिफिकल्ट कि हो क्या ये जाएगा। नुकसानदेह है 3-4 long term? महीने के लिए देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लो तो ये छाती के ऊपर जाके रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के, जहाँ पे काम करता है, और ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई कर लोग सकता है। 3-4 साल से खा रहे हैं। कभी कभी चॉइस नहीं होती, क्योंकि कुछ को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो इट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये वो वाला हिसाब है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज्ञान दे रही थी तो मुझे लगा हार्मोन्स तो है नहीं, फिर मैंने आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, फिर मैंने लॉन्च किया, मैंने कहा ट्रीटमेंट तो है नहीं, ज्ञान में दे रही हूँ, फिर मैंने बायोइडेंटिकल को पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो इट इज़ अवेलेबल, हर एक को एक्सेसिबल है। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव करके जब सबको ज्ञान मिल क्या जाए। चीजें हैं बायोइडेंटिकल, इसके बारे में बायोइडेंटिकल हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में पता है कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे दिए जाते ये हैं? प्लांट बेस्ड होते हैं, याम से बनते हैं, सेम मॉलिक्यूल है जो आपकी ओवरी 17 बीटा एस्ट्राडियोल बना रही होती है, सेम मॉलिक्यूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप हमेशा अब चाहते हैं अगर बाय माउथ लेंगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, इसकी वजह से आप इसको टैबलेट की सूरत में नहीं दे सकते, आपने क्रीम की सूरत में देना है जो आप यहाँ पे लगाते हैं, और एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए तो सारी उम्र मेनोपॉज है। इसके बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको BHRT प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता हो कि हार्मोन्स कैसे देते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। 40 साल की औरत आपके पास आती है और आपने कितनी सही बात की थी, डिवोर्सेस, उसका इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा होता है, उसका डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रहा होता है, उसके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, अपने हस्बैंड से आपसी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, ब्रेन फॉग, कितनी औरतें जो इतनी हाई एंड, और आपको Brain पता fog is very dangerous. मेरा क्लाइंटल सारा, जिनको मैं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड पेशेंट देखती हूँ, कॉर्पोरेट वाली होती हैं, लॉयर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबका ये कि जैसे जैसे हम एज कर रहे हैं हमें वोकैबुलरी हमारी ख़त्म हो रही है। मुझे फेस याद आ रहा होता है, टिप ऑफ माई टंग में होता है कि इस बंदी ने क्या कहा था, और मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा होता, नाम नहीं याद चीज़ें रहती भूलना शुरू हो जाते हैं, और उसके तो बाद जो यानी अपने मुआशरे में देखते हैं उठते बैठते लोग, बज़ाहिर वो बिल्कुल सही नॉर्मल नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बिहेवियर जब आप उनके ऑब्जर्व करें कि सडन कोई प्रोवोकेशन में आ जाए, यानी कि जरा सी कोई बात हुई, Absolutely. वो बिहेवियर्स यानी इस वो तरह देखिए ना, इस एज ग्रुप में कहते हैं ये बड़ी खड़ूस सी हो जाती हैं, ज्यादा मम्मी को गुस्सा आने लगा है, मेरी बीवी ना आजकल वो बहुत सड़ी हुई रहती है, इसमें तो वो हर वक्त थकी हुई होती Always है, ये complaining क्यों, about ये something. उसके कंट्रोल में नहीं है। एंगर, इसको depression. टेंट्रम्स, और उसके बाद मजे की बात और ये है आपकी कि- और आपके ओवरऑल आपकी फिजिक, आपकी अपीयरेंस, आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज अफेक्ट हो। और आप खातून से जाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अब वो बच्चों पे लड़ रही है, वो आपके साथ एकदम फट पड़ती है, बहुत जिटरी है, और इरिटेबल और झुंझलाहट उसकी, और जब कमरे से बाहर जाएंगे, बिलीव मी, वही औरत कहती है कि व्हाई डिड आई डू दैट, वो अपने ऊपर गिल्ट फैक्टर ले लेती है, उसको समझ नहीं आती व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दैट। देखिए, एग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी और चीज़ की बीमारी होना हो सकती है अगर प्रीवियस हिस्ट्री है। 40 साल की औरत अगर आपके साथ विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री इन सिम्टम्स के साथ आ रही है, तो मैं हमेशा डॉक्टर्स को कहती हूँ और मैं इल्तिजा करती हूँ उनसे कि उनके हार्मोन्स की फाउंडेशन चेक कर लें। हार्मोन्स को अगर आप फिक्स कर देंगे नेचुरल हार्मोन से, सिंथेटिक हार्मोन से नहीं, उससे होगा क्या? देखिए, आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, आपके अंदर क्या मतलब साइकिल्स भी उसमें आपकी जो है वो मंथली साइकिल भी रेगुलर हो जाती है? 2 तरीके होते हैं इसके देने के। कान पे हाथ रखो। पेरीमेनोपॉज में जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेट कर देते इसी हैं। वजह से तो ये चीजें एग्रीवेट हुई हैं कि because आप we तुम don't कानों talk पे हाथ रखो, तुम नहीं सुन सकते, मर्दों की बातें औरत नहीं सुन सकती, इसीलिए ये मसला क्या ख्याल है? 40s में आदमी जाके कितने हैंडसम होते हैं, 40s में जाके कितने वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। औरत इस एज में फाइनेंशियल स्टेबल हो सकती है, अपने बच्चे बनाना उसने बंद कर दिया, वो स्टेबल हो गई, लेकिन उसकी जो अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं, जो उसकी हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, वो जितनी भी जिम चली जाए, जितने भी अर्ब सप्लीमेंट्स ले ले, अंदर जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। द ट्रीटमेंट इज बायोइडेंटिकल। और जो ये चीज़ खत्म हुई कितना है, अरसा लेने पड़ते हैं आपको? एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए सारी उम्र रहता है। एक औरत को अगर मेनोपॉज 50 साल में हुआ, शी इज़ गोइंग टू लिव इन दैट
टाइम पीरियड फॉर 40-50 ईयर्स 40-50 ईयर्स अब अगर हार्मोन के बगैर रहेंगे तो आप खुद देख लें कि तो आपके मतलब ये साथ सारी जिंदगी फिर इसको तो वंस मेनोपॉज इज देयर ट्रीटमेंट इज अब ये ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या इसमें डाइट का भी फैक्टर कोई है? क्योंकि या पहले पुराने वक्तों में देसी चीजें खाती, या आपकी पुराने वक्तों में रिसर्च क्या कहती है? मतलब अर्ली हो रहा है अभी। रिसर्च में हुई साइंस की बंदी, मैं Research क्या डॉक्टर्स को बताती है आपको? ट्रेन करती हूँ। पुराने वक्तों में इतने लंबे अरसे तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। अगर कोई कहता है मेरी दादी 100 साल तक जिंदा थी तो वो एक कोई बंदी दादी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल पहले 200 साल पहले ओनली वाज 34 and 44 इन एवरी डिफरेंट कंट्री। ये क्या, ये तो वो है जी, अंकुर बात और नहीं, अब पूरा जो पहले है- तो 60-60 70 एवरेज होता था। आप बिल्कुल ये कुछ अरसे पहले जा रहे हो, जो 60-70 साल की औरतें थी बीमारियों के साथ रहती थी और वो बैठी होती थी सोफे के ऊपर या उनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और सारा कुछ। आजकल की औरत आंटी आपको कहीं से नहीं लगती। 40-50 की औरत को आप आंटी कह के देखें, नहीं, ये बात है, ये बात है इतना daring हम नहीं हो सकते। 50s is the इतना new daring नहीं हो 30s, सकते। 50s is the new and they're 30s now, physically बिल्कुल। fit and they want to live longer and they Yes. want to live healthier। अभी आपकी चॉइस है। कुछ औरतों को मैटर नहीं करता, they want to live कि हमें नी रिप्लेस हो गया, हम बीमार भी हो गए 60 साल में, अब क्या करना है जी के। कुछ औरतें जाके 60 में उनको जो है अपना नया लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, उनको अपनी हेल्थ चाहिए होती है, उन्होंने अभी अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करना होता है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्फॉर्मेशन कितनी सही है आपके पास। तो डॉक्टर साहब अगर ये कोई स्विच करना चाहते हैं इस पे तो क्या आप बताएंगे, कैसे आपसे सबसे राब्ता पहले हो और क्या करें, मैं किसको डॉक्टर्स reach को out ट्रेन करें? कर रही हूँ। मेरी जो क्लिनिक है DSM क्लिनिक डॉक्टर शिवाना मुफ्ती गुलबर्ग लाहौर में ये है। ज़रूरी हम है। ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं हर एक को ज्ञान देती हूँ, नॉलेज देती हूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। अब अगला इंशाल्लाह मेरा यही है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ। ये तो अभी US मैन्युफैक्चर्ड है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और हमारी क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अनकरीब मैं आपके शहर में भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। दिस इज़ अ बैटल। जंग जो है ना वो मैदान में उतर के लड़नी है और सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डॉक्टर्स को समझाना है, बताना है कि एविडेंस बेस्ड साइंस आ चुकी है, FDA अप्रूव्ड है। अपनी अपनी प्रैक्टिस, खाली गायनेकोलॉजिस्ट को आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? एक डॉक्टर के पास जब एंजाइटी डिप्रेशन के साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, ENT के डॉक्टर के पास जाके कहती है कि मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, मेरी आंखें ड्राई हो गई हैं, आप सबसे पहले सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर आ जाते हैं बाहर से। जो इनसाइड हेल्थ है उसको कोई देख नहीं रहा। तो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ है। वी आर मेड ऑफ सेल्स, मैं कहती वी आर मेड ऑफ हार्मोन्स। सारी गेम ही हार्मोन्स। हार्मोन आपको औरत बनाती है। प्यूबर्टी होती है, पहला पीरियड जब आपको आता है तो औरत बनती है, बचपन से जवानी में जाती है और जब जवानी के बाद 50 के साल के आसपास जाके उसके हार्मोन खत्म होते हैं तो बुढ़ापे की तरफ जाती है। सो चॉइस आपकी है कि सही नॉलेज और साइंस को समझ के अपनी अपने जिंदगी फिर फायदा नहीं, वरना आप Quality इस of दौर में life। अगर हैं और बहुत आप शुक्रिया तकलीफ से आपका, रह आपने रहे वक्त दिया, हैं, Rising क्या Shine में फायदा? बहुत तो enlighten ऑल दीज किया। पेनफुल सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड या बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं अगर आप राइट थेरेपी जो है जिसके बारे में आपको नहीं पता वो जरूर जी। उसको जो है इसको आप अडेप्ट करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much। बहुत शुक्रिया।